Ultrafilters used in cardiopulmonary bypass. Ultrafilters, also known as hemofilters, contains semipermeable membrane that permit passage of water and electrolytes out of the blood. Inflow line comes from arterial port out of the oxygenator and outflow line goes into port on cartomy reservoir. It is used to manage blood volume, hemoglobin, proteins, certain electrolytes, and inflammatory mediators. Its filter size ranges from 15,000 to 55,000 Dalton. That means some amount of heparin will be removed. Solute also removed, such as sodium, potassium, chlorine, insulin, glucose, urea, creatinine, and bicarbonate. There is hollow fiber layer. Its size ranges from 180 to 200 micrometer, and microporous layer size ranges from 5 to 10 nanometer. Now the mechanism, like how this ultrafilters work. So the movement of water across the semi-permeable membrane using the energy derived from hydrostatic pressure gradient. As water diffuses, it creates a solute concentration gradient across the membrane. These solutes then diffuse across the membrane, equalizing the concentration in a process of solute removal is called convection. The first time use of ultrafilters during cardiopulmonary bypass is reported by Darup J in 1979. It is a diagram showing how this convection mechanism works in ultrafilter. Flow through the hemoconcentrators can be as great as 500 cubic centimeter per minute. Fluid removal can go up to rate of 180 cubic centimeter per minute, but it is usually 30 to 50 centimeter per minute. Suction can be applied to water extraction line to facilitate water takeoff. Transmembrane pressure can be increased by partially clamping hemoconcentrated outflow line. It increases the amount of solute and water extracted. Flow remains the same. Maximum transmembrane pressure is 500 mm of mercury. We can increase flows to hemoconcentrated by increasing pump flows. There are 4 types of ultrafilters used during cardiopulmonary bypass: pre-bypass ultrafilters, conventional ultrafilter, zero balance ultrafilter, and modified ultrafilters. सबसे पहला है हमारे पास प्री बाईपास अल्ट्रा फिल्टर। नाम से पता चल रहा है प्री बाईपास मतलब बाईपास से पहले, ठीक है। सो बेसिकली ऐसी टेक्निक है जो कि प्राइमिंग ब्लड को या फिर प्राइमिंग फ्लूइड को फिल्टर करती है बिफोर इनिशिएशन ऑफ सीपीबी, जिससे इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, लैक्टेट लेवल, सिट्रेट लेवल मेंटेन रहे। ये एक्सेसिव पोटेशियम को, ब्रेडिकाइनिन को रिमूव करती है, ठीक है। देन बेसिकली इसका एडवांटेज भी है कि इट रिड्यूसेस कार्डिक इम्पेयरमेंट एंड पल्मोनरी डिसफंक्शन। एक डिसएडवांटेज है इसका, दैट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशिएशन के टाइम पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। सेकेंड है हमारे पास कन्वेंशनल अल्ट्रा फिल्टर्स। इसका हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सीपीबी, ड्यूरिंग दी सर्जरी। सो बेसिकली इसका सर्किट कैसा है, सबसे पहले पेशेंट से ब्लड आएगा, वीनस रिजर्वॉयर के अंदर आएगा, ठीक है, वीनस लाइन के थ्रू वीनस रिजर्वॉयर में ब्लड आया, उसका आर्टीरियल पंप के थ्रू ऑक्सीनेटर में जाएगा फॉर दी ऑक्सीनेशन। फिर ऑक्सीनेटर से अल्ट्रा फिल्टर की इनफ्लो लाइन निकलेगी, ठीक है, हीमोफिल्टर में जाएगी, हीमोफिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे। देन उसके बाद आउटफ्लो लाइन जाएगी कार्टोमी रिजर्वॉयर के अंदर, देन कार्टोमी रिजर्वॉयर से ब्लड जाएगा वीनस रिजर्वॉयर के अंदर। सो ये हो गया कन्वेंशनल अल्ट्रा फिल्टर, कफ का सर्किट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो बैलेंस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो बेसिकली कैसा प्रोसेस है, इसको हम ड्यूरिंग वीनिंग करते हैं, ठीक है, आफ्टर रिवॉर्मिंग, मतलब रिवॉर्मिंग के बाद और वीनिंग के टाइम पे किया जाता है। इसके अंदर एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं हम वीनस रिजर्वॉयर के अंदर, ठीक है, मतलब जितना फ्लूइड रिमूव हुआ उतना फ्लूइड इसके अंदर ऐड होता है। फ्लूइड कैसा हो सकता है, जैसे कि हार्टमैन सोल्यूशन हो गया, कोई प्लाज्मोलाइट हो गया, नॉर्मोसोल हो गया, रिंगल एक्टेड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ब्लड पोटेशियम लेवल कंट्रोल होता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल, लैक्टेट लेवल को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ रिमूविंग प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सच एज ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 एंड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जैसे कि C3A हो गया, C5A हो गया, ठीक है, इन सबको रिमूव करता है ये। देन नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाइड अल्ट्रा फिल्टर। मॉडिफाइड अल्ट्रा फिल्टर का सर्किट बहुत सिंपल है। पहली बात, इसको हम आफ्टर सर्जरी करते हैं फॉर 15 टू 20 मिनट्स, जो जितना भी एक्सेस बॉडी वाटर है उसको रिमूव करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एओर्टा से ब्लड लेंगे, ठीक है, हम आर्टेरियल लाइन से ब्लड ले रहे हैं, एओर्टा से ब्लड आएगा आर्टेरियल लाइन फिल्टर के अंदर, फिर कार्डियोप्लीजिया पंप में आएगा, ठीक है, कार्डियोप्लीजिया पंप के थ्रू जाएगा वो हीमो फिल्टर्स के अंदर, फिर हीमोफिल्ट्रेशन होगा, देन वो जाएगा राइट एट्रियम में। इस बेनिफिट से इट इम्प्रूव्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, इट ऑल्सो इम्प्रूव hemostasis and it reduce the total body water accumulation that is seen in the patient after cardiopulmonary bypass.